हे एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। तो चलिए इस वीडियो में हम बाईवीकली कॉन्टेस्ट 163 में जो सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ परफेक्ट पेयर्स, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, अ पेयर indices I, j is called perfect if following conditions are satisfied. Okay, I should be less than j, and let a equals to nums of I, b equals to nums of j. Okay, these are the pairs that we are picking up, and whatever the values that are available in this nums of I and nums of j, we are just trying to take it into this a and b. Then the first operation should be like whatever the minimum value that we are getting it, a minus b absolute value, and a plus b whatever the absolute value that we are getting, it should be less than or equals to this minimum between a and b. Okay, again here we are using absolute values. So second operation is kind of same. So whatever the maximum value that we are getting it by performing this particular operations, okay, it should be greater than or equals to this maximum between a and b. Okay, I guess the idea is pretty much clear. So we need to return the number of distinct perfect pairs, right? And the absolute value of x is refers to the non-negative value of x. Okay, so if x value is negative, then we just need to perform it into the positive value. We just need to convert it into the positive value. Okay, I guess this idea is clear. So if we look into the first example, right? So 0, 1, 2, 3. Here the numbers are negative as well. If we look into the constants, that's why it also says that this absolute value is something what we have to pick up. So all these numbers are ranging from minus 10 to the power of 9 to 10 to the power of 10, 10 to the power of 9. Okay, and this length is basically 10 to the power of 5. Okay, so अगर फर्स्ट एग्जांपल पे हम फिर से एक बार देखेंगे, या फिर सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, तो सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो -3, 2, -1, 4 ये कुछ वैल्यूज़ है। एंड अगर हमने 0 एंड फर्स्ट इंडेक्स पिक कर लिया, तो उसमें वैल्यूज़ क्या है, -3 एंड 2 है। करेक्ट। सो बेसिकली ए एंड बी आर -3 एंड 2, then minimum between these values is basically 1. Okay, so again, like when we try to get the minimum between -3 and 2 by performing the absolute values, okay, by getting the absolute values, the minimum value is basically 2. So here obviously this 1 should be less than or equals to this 2, right? That was the first condition. Correct. And second condition is basically maximum value whatever we are getting it, like it is 5, so it should be greater than or equals to this 3. ओके, सो अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो कुछ चार अलग अलग पेयर्स निकल आ रहे हैं, राइट? सो जस्ट कैलकुलेट करना है इनके वैल्यूज, एंड उसके बेसिस पे मिनिमम एंड मैक्सिमम अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं दो कंडीशन पे, तो उसको काउंट करते जाना है, राइट? दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस। एंड अगर नहीं है तो जीरो आंसर रिटर्न करना है। ओके, आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर। सो चलिए एक बार मैं कनेक्ट कर लेता हूँ स्क्रीन पे, एंड उसको उसके ऊपर समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, एंड देन इसका कोड भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। लेट अस सपोज ये कुछ एरे दिया गया है, एंड ये दो ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करते जाना है। किसी भी दो इंडेक्स को हम पिक कर सकते हैं इसमें, राइट? एंड उन इंडेक्स में लेट अस सपोज करेंटली आई इज बेसिकली दिस एंड जे इज बेसिकली दिस। इन दो इंडेक्स को अगर हमने कंसिडर कर लिया, तो ए इज बेसिकली इक्वल्स टू -3, बी इज बेसिकली इक्वल्स टू 0, राइट? सो वही आइडिया थी ना, नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे, बेसिकली हम कंसिडर कर रहे थे ए एंड बी को। तो हमें बस ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू दिस मीन बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो हम अगर केयरफुली देखेंगे यहाँ पे, हम हर बार एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? जो भी आंसर निकल आ रहा है यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यूज को निकाल रहे हैं। अगर किसी वैल्यू को हम एब्सोल्यूट में ही कंसीडर करना है एट द एंड, यहाँ पे लिख के दिया है ना क्लियरली, दोनों वैल्यूज ए एंड बी एब्सोल्यूट में ही हम कंपेयर कर रहे हैं एट द एंड। एंड यहाँ पे मीन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में ए माइनस बी का एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं एंड ए प्लस बी का एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज ही निकालना है एट द एंड, तो जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको हम पॉजिटिव में ही सिंपली कंसीडर कर लेंगे, राइट? जो नेगेटिव वैल्यूज हमें यहाँ पे दी गई है उसको पॉजिटिव में ही कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि देखो अगर हमें एब्सोल्यूट निकालना है इन दोनों में जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, अगर नेगेटिव वैल्यूज को हम पॉजिटिव में कंसीडर कर लिए, तब भी आंसर सेम निकल आएगा, राइट? बस हाँ, इसका आंसर मैक्सिमम निकल आ सकता है, इसका आंसर मिनिमम निकल आ सकता है किसी केस में, बट आंसर वही आएगा ना एट द एंड। जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं आंसर वही निकलेगा, राइट? अगर लेट अस सपोज मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन दैट वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ए को -3 कंसिडर कर रहे हैं एंड बी इज बेसिकली 2। अब देखो अगर मैंने -3 कंसिडर कर लिया एंड ये पर्टिकुलर ऑपरेशन मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट? सेम ऑपरेशन है,
ए की प्लेस पे मैंने -3 रख दिया, बी की प्लेस पे 2 रख दिया। ओके, दैट इज द सेम ऑपरेशन, राइट? दोनों ऑपरेशन सेम है। एंड -3 यहाँ पे रख दिया, 2 यहाँ पे रख दिया। तो इनका आंसर क्या आ रहा है? 5 एंड 1 आ रहा है, राइट? एंड सेम अगर मैं इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कंसिडर कर लूँ, राइट? अगर ये इज बेसिकली -3 है, बट इसको मैंने पॉजिटिव में कंसिडर कर लिया। बी इज बेसिकली ऑलरेडी पॉजिटिव, तो हमें उसको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा, राइट? यहाँ पे -3 था, बस यहाँ पे +3 रख दिया। पहले से ही मैंने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली, -3 को मैंने +3 कंसिडर कर लिया, राइट? तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब इसका आंसर क्या आ रहा है? 1,5 आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे मीन निकालना है या फिर यहाँ पे भी मीन निकालना है, तो दोनों का आंसर 1 ही निकल रहा है ना अल्टीमेटली। बस इधर की वैल्यू इधर हो रही है, इधर की वैल्यू इधर जा रही है, राइट? बट अल्टीमेटली द आंसर इज बेसिकली सेम, राइट? इन दोनों का मिनिमम 1 ही आएगा, इन दोनों का मैक्सिमम 5 ही आएगा, दोनों केस में, राइट? द आइडिया इज वेरी क्लियर। सो हम यहाँ पे क्या करें? अगर सेम देखो, दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, -3 -2 थे, तो फर्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे सेम, लाइक a माइनस बी एंड a+b। तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज आएंगे। अगर मैं दोनों को पॉजिटिव में कंसिडर कर लूँ, 3 एंड 2 इस तरीके से वैल्यूज में कंसिडर कर लूँ, तो आंसर किस तरीके से आ रहा है? 3 - 2 एंड 3+2, इसका आंसर 5 - 1। तो देखो आंसर सेम आ रहा है, राइट? बस वैल्यूज इधर की इधर जा रही है, इधर की इधर आ रही है। बट अल्टीमेटली क्या हम मीन एंड मैक्स निकालते समय इस पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। बिकॉज देखो, अब ये क्यों कर रहे हैं हम इस तरीके से डायरेक्टली, हम जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको हम पॉजिटिव में क्यों कंसीडर कर रहे हैं, राइट? तो अगर देखोगे यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं क्वेश्चन में, ये जो मीन जो निकाल रहे हैं, राइट? इस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली ए का एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं, बी का एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं। तो डायरेक्टली ये हिंट दे देगा कि लाइक जो भी हम आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसके हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज भी रहेगी तो वो पॉजिटिव में जाके बड़ी बन सकती है अल्टीमेटली। अगर पहले से एक पॉजिटिव वैल्यू बी लेट सपोज 2 है एंड ए इज बेसिकली -10, स्टिल उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 10 ही निकल आएगा उस केस में, राइट? तो इन दोनों का मिनिमम 2 ही आएगा उस केस में। तो ये फर्स्ट हिंट मिलेगी कि लाइक हाँ चलो, जो अगर नेगेटिव वैल्यूज भी है तो उसको हम पॉजिटिव में कंसिडर करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? उससे क्या होगा कि लाइक ये जो ओवरहेड है, लाइक अगर मैं -3 है एंड यहाँ पे 2 है, ओके, -3 -2 के साथ एक पेयर तो आसानी से बन सकती है। अब वो बन सकती है नहीं बन सकती है, हम इसको इसमें रख के हम देख लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। बट देखो -3 है एंड 2 है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, लाइक इन दोनों के बीच में जो गैप है, उसको हमें फिगर आउट करते बैठना पड़ेगा। लाइक हमें हर एक इंडेक्स पे जाके देखना पड़ेगा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। तो उस केस में हम डायरेक्टली इसको पॉजिटिव में कंसिडर कर रहे हैं। बट आगे जाके आपको क्लियरली समझ आएगा कि लाइक हमने हाँ इस वजह से हमने इसको कंसिडर कर लिया था। ओके, द मोमेंट यू रियलाइज लाइक ओके हाँ यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज हमें अफेक्ट कर रही है, हमारा एल्गोरिथम एन स्क्वायर में बन रहा है, तो उस केस में हम इसको डायरेक्टली पॉजिटिव कर रहे हैं। ये आप लोगों को समझ आएगा। जस्ट आगे एक दो मोमेंट की बात है, आपको क्विकली समझ आएगा कि like हम क्यों इसको पॉजिटिव में कंसिडर कर रहे हैं। ओके ओके, तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास एरे दिया गया है उसको डायरेक्टली जो भी नेगेटिव वैल्यूज है उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उस एरे में अपडेट करके रख दिया। ओके, नाउ द एरे इज बेसिकली लुकिंग लाइक दिस। ओके, इस तरीके से कुछ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि बस फिगर आउट करना है यार। देखो अब पेयर्स ही निकालना है ना अल्टीमेटली। अब वो पेयर्स कुछ भी हो सकता है, लाइक आई बेसिकली दिस वन, जे बेसिकली दिस वन। अब इन दोनों के बीच में हम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला रख के देखेंगे, दोनों अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसको एक काउंट कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट इज लाइक बेसिकली आई इज बेसिकली दिस वन एंड जे इज बेसिकली दिस वन, लाइक 4। अब इन दोनों के बीच में भी फॉर्मूला रख के देखेंगे, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। बट अगर इस तरीके से जाना ही है, लाइक करंटली आई इज पॉइंटिंग हियर एंड जे बेसिकली कीप्स ऑन गेटिंग इंक्रीमेंटेड, तो एल्गोरिथम एन स्क्वायर में बनेगा, राइट? एन स्क्वायर में हमारा कोड बनेगा। एंड क्या ये एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी सेटिस्फाई करेगी? अगर हम इनपुट्स में देखेंगे, दिस लेंथ इज बेसिकली 10⁵। ऑब्वियसली अगर 10⁵ है तो हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमें टीएलई हिट होगा इस केस में। तो हमें कुछ बेटर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा एंड हमें फिगर आउट करना पड़ेगा लाइक इन दोनों के जो भी पेयर्स हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें क्या एक रिलेशन, कॉमन रिलेशन बैठ रहा है जिसके वजह से हम इजीली आंसर्स को ट्रैक कर सकते हैं। वही हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर वो फिगर आउट करना है तो देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या करी है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, ओके, एब्सोल्यूट बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू वॉट एवर द मिनिमम वैल्यू दैट वी आर गेटिंग इट बिटवीन दिस a एंड b, राइट? तो अगर केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, देखो यार, अब हमारे पास लेट अस सपोज a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। तो a माइनस बी अगर करोगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, राइट? मिनिमम अगर हम निकाल रहे a माइनस बी करोगे तभी 1 आएगा ना।
इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 माइनस 3 करोगे तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही निकल आएगी। तो ये वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में जो भी स्मॉलेस्ट है इससे स्मॉल होनी चाहिए, इससे स्मॉल होनी चाहिए। अब वो किस केस में होगी, देखो अगर ए एंड बी के बीच में जो डिफरेंस है, विच एवर इज द वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट वी हैव, यहाँ पे दो स्मॉलेस्ट है, राइट, 2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू बिटवीन दिस 2 एंड 3, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 तक अगर तुम जाओगे कंसीडर करते हुए, राइट, 4 तक अब तुम जाओगे कंसीडर करते हुए, लाइक ए इज अगर 2 है एंड बी इज बेसिकली 4, तो इन दोनों का अगर तुम सब्सट्रैक्शन करोगे 2 माइनस 4, इसका आंसर लेस देन और इक्वल टू 2 हमेशा आएगा ना, राइट। मतलब जो भी मिनिमम वैल्यू है उसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां तक हमारी रेंज बन रही है, यहाँ पे वहां तक हमारी रेंज बन रही है। मतलब अगर दो वैल्यूज दी गई है, उसमें जो मिनिमम वैल्यू है, उसमें जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे 2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो उसका आंसर 4 आ रहा है। तो 4 तक हमारी रेंज आसानी से बन सकती है, 4 तक हमारी रेंज आसानी से बन सकती है। मतलब बी की रेंज, बी की जो वैल्यू हम फिगर आउट करेंगे वो 4 तक हम जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि देखो 2 - 4 अगर करोगे तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा, राइट, बिकॉज इनका डिफरेंस 2 आएगा एंड वो हमेशा 2 के बराबर हो सकता है। अब ये 4 की वैल्यू, राइट, ये 4 की वैल्यू 2 तक नहीं आ सकती, लाइक इसकी रेंज कहाँ से होनी चाहिए, 2 से लेके, लाइक 2 + 1 से लेके इसके 2 × 2, यहाँ तक रेंज होनी चाहिए। लाइक ये जो बी की वैल्यू है हम कंसिडर कर रहे हैं, ये तो 3 या फिर 4 हो सकती है, जिससे हमारा आंसर बन सकता है, जिससे हमारा आंसर बन सकता है, राइट। अब नेक्स्ट वाली चीज देखो, लाइक लेट अस सपोज 3 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, लाइक लेट अस सपोज ए इज बेसिकली 3। अब बी की रेंज कहाँ तक जा सकती है, बी की जो वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं कहाँ तक जा सकती है, लेट अस सपोज यहाँ पे 4 है। तो अगर इस फॉर्मूले में रख के देखोगे, ये मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, हमें बस यहाँ पे मिनिमम को सेटिस्फाई करके देखना है, मिनिमम को सेटिस्फाई करके देखना है, मैक्सिमम तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में प्लस करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बड़ी ही आएगी, हमेशा बड़ी ही आएगी। अगर केयरफुली तुम कंसिडर करोगे ए प्लस बी करोगे तो हमेशा ए एंड बी से बड़ी ही वैल्यू निकल आएगी ना। अगर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है एंड 2 + 4 करोगे तो हमेशा इन दोनों के ऊपर ही निकल आएगा। तो मैक्सिमम का तो कोई लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम तो आसानी से हम फिगर आउट कर लेंगे कि लाइक हमें बस मेनली फोकस कहाँ पे करना है कि इन दोनों के बीच में जो मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों के बीच का सब्सट्रैक्शन जब करोगे इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस मिनिमम वैल्यू बिटवीन ए एंड बी। तो वो उसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है, लेट सपोज ए इज बेसिकली 3, ओके। तो अगर ये स्मॉलेस्ट हम वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं इस केस में, लेट सपोज ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हम कहाँ तक इसकी पेयर्स कंसिडर कर सकते हैं, 3 - 4 करोगे तो 1 आंसर आ रहा है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा। 3 - 5 हम करोगे यहाँ पे तो इसका आंसर 2 आएगा, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। 3 - 6 करोगे तो ये 3 है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। अब 3 - 7 जब हम करेंगे तो देखो 3 - 7 जब करेंगे तो इसका आंसर 4 आ रहा है, इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन दिस 3। तो हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देख रहे हो ना, लाइक यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है। तो जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इंटू 2 जब करोगे तो वहां तक जितने भी वैल्यूज हमारे पास है एरे के अंदर, वहां उनको हम पेयर कंसीडर कर सकते हैं आसानी से, उनको हम पेयर कंसीडर कर सकते हैं आसानी से, राइट। आइडिया इज क्लियर। सो हमारे पास अब क्लियरिटी मिल गई कि लाइक हाँ कहाँ से कहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एरे दिया गया है, लाइक लेट अस सपोज ये पर्टिकुलर एरे है जिसको हमने मॉडिफाई किया था प्लस में, पॉजिटिव में कंसीडर करते हुए, ओके। तो अगर 3 है मेरे पास तो मैं 3 के लिए 4 सेटिस्फाई हो सकता है, 5 सेटिस्फाई हो सकता है, राइट। 3 के लिए 4 एंड 5 सेटिस्फाई हो सकता है। तो 3 एंड 4 इज वन पेयर, 3 एंड 5 इज अनदर पेयर, राइट। अब 0 है तो 0 × 2 करोगे तो बेसिकली आंसर 0 आएगा, तो इसका तो कुछ सेटिस्फाई बनेगा नहीं, राइट। नेक्स्ट इज 2, 2 × 2 करोगे, 2 × 2 करोगे, राइट, 2 × 2 तो इसकी 4 है। तो 4 तक जितने भी वैल्यूज हमारे पास एरे में दी गई है, मतलब वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से इक्वल भी हुई तो चलेगा, मतलब 2 एंड 2 इज अगेन गिवन, दैट शुड आल्सो फाइन, बट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि डिस्टिंक्ट वैल्यू ही निकालनी है, तो उस तरीके से वैल्यूज हमारे पास रहेगी नहीं बेसिकली। बट इन केस -2 एंड 2 अगर गिवन है तो वो बेसिकली सेटिस्फाई हो सकता है, बिकॉज ओनली वन डिस्टिंक्ट पेयर इज समथिंग व्हाट वी आर गेटिंग इट। तो 2 से लेके 4 तक हम कोई से भी पेयर्स अगर एरेज में वैल्यूज है, लेट सपोज यहाँ पे 4 है एंड 3 है, तो ये 2 के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई है, राइट। तो इनका काउंट हम कंसीडर कर सकते हैं आसानी से। अब 4 के लिए कौन से पेयर्स का सेटिस्फाई है, 4 के लिए 4 × 2 तक जितने भी वैल्यूज एरे में अवेलेबल है,
उतने पेयर्स हम क्रिएट कर सकते हैं 4 के लिए, उतने यूनिक पेयर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट, जो ये कंडीशंस इजीली सेटिस्फाई कर देंगे। ओके, द आइडिया इज क्लियर। तो हमें क्या करना है, बस हम क्या करेंगे, इन एरेज में जो एलिमेंट्स है इसको हम पहले सॉर्ट करके देख लेते हैं, राइट। अब सॉर्ट क्यों करेंगे, देखो अगर नॉर्मली हम ऐसे फिगर आउट करते बैठेंगे लाइक नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या है, तो ऑब्वियसली अगेन वो एन स्क्वायर में ही जाएगा, राइट। तो एक बार सॉर्ट करके देख लेंगे तो कुछ क्लियरिटी मिल सकती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एरे को सॉर्ट करेंगे, क्योंकि देखो 3 के आगे के जितने एलिमेंट्स है लाइक 3 क्रॉस 2, उधर तक हमारी रेंज है, तो हम इजीली हम उतने एलिमेंट्स को फिगर आउट कर सकते हैं कुछ टेक्निक से। ओके, तो उसके लिए हम बेसिकली एरे को सॉर्ट कर लेंगे, मतलब वो वही एक लॉजिक दिमाग में आ जाता है, राइट, इस कंडीशन में, राइट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ओके, लेट मी क्लीन दिस स्टफ्स राइट ओवर हियर। अब देखो, अब एरे को अगर सॉर्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है ना, फिर से अगर मैं देखने भी जाऊंगा लाइक लेट अस सपोज 3 से हमें देखते जाना है, तो 3 into 2 तक जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है उतने हम एलिमेंट्स को देखते जाएंगे एंड आंसर एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें हम ऐड करते जाएंगे, राइट, दैट इज द लॉजिक दैट वी आर गेटिंग इट, राइट। बट स्टिल इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि लाइक जो भी एरे एलिमेंट है, लेट अस सपोज यहाँ पे 3 है तो लास्ट तक हमें जाना पड़ रहा है, बट सेम अगर एरे 10 to the power of 5 के सारे एलिमेंट्स एरे में अवेलेबल है, उसको जिस जिस तरीके से हमने सॉर्ट करके रख दिया हर एक इंडेक्स पे, तो हाफ से लेके पूरे अगेन एंड तक हम बार बार लूप चलाते जा रहे हैं उस केस में, तो स्टिल यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर बन सकती है किसी केस में। ओके, बिकॉज हाफ से लेके आगे के सारे एलिमेंट्स हर एक इंडेक्स के लिए सेटिस्फाई होते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे भी स्टिल एन स्क्वायर बन सकती है, उसको स्लाइटली मॉडिफाई ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डीपी से। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अगर हम देखेंगे तो क्यू का यूज किया है मैंने यहाँ पे। अब क्यू से क्या होगा कि लाइक जो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर बन रही है वो बी ऑफ एन में हम इजीली टारगेट कर सकते हैं उसको। ओके, तो किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, अगेन जो भी यहाँ पे मैंने यूज किया है लॉजिक एंड ऑल, इसको बेटर तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट जो भी मेरे पास थॉट प्रोसेस उस टाइम पे आ रही थी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, उसका यूज करते हुए मैंने इसको सॉल्व कर लिया। बट अगर कोई बेटर अप्रोचेस है आपके पास तो आप कमेंट में लिख सकते हो उस पर्टिकुलर कोड को एंड शेयर कर देना। एंड अगर बाद में कुछ बेटर अप्रोचेस देखने को मिलेंगी तो ऑब्वियसली मैं अपडेट कर दूंगा। ओके, सो अब क्यूब का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, किस तरीके से कर सकते हैं, देखो जो भी आखिरी एलिमेंट हमारे पास है 5, उसके लिए तो कोई सी पेयर बनेगी ही नहीं, तो इजीली हम उसको क्यू में डंप कर सकते हैं। ओके, अब देखो 5 को, मतलब देखो जो लास्ट एलिमेंट है इसके लिए तो कोई पेयर बनेगी ही नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज इसके आगे कोई एलिमेंट्स है नहीं जो हम देख सकते कि 5 क्रॉस 2 जो भी एलिमेंट्स है वो निकाल नहीं सकते ना। तो ऑब्वियसली हमने क्या किया, फर्स्ट 5 को क्यू के अंदर डंप कर दिया। ओके, 5 इज बेसिकली अवेलेबल एट द टॉप ऑफ क्यू, राइट। क्यू में हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है, जो भी नए एलिमेंट्स आ रहे हैं बैक साइड पे फिल होते जाते हैं, राइट। तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है हम पीछे से फॉर लूप चला रहे हैं। ओके, सो 5 इज ऑलरेडी डन, नाउ आवर आई इज बेसिकली पॉइंटिंग एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ओके, फॉर लूप हम पीछे से चलाते जाएंगे। अब 4 जो एलिमेंट है उसको चेक करेंगे कि क्या क्यू में 4 क्रॉस 2 से कोई वैल्यूज अवेलेबल है, एक्स्ट्रा वाली वैल्यूज, राइट। 4 क्रॉस 2 से कोई बड़ी वैल्यूज अवेलेबल है एट द टॉप, अगर है तो उसको पुल आउट करके निकाल दो, अगर है तो उसको पुल आउट करके निकाल दो। बट करेंटली 5 इज बेसिकली इन रेंज, 4 क्रॉस 2 को देखेंगे तो 5 इज एक्चुअली इन रेंज, राइट। हमें क्या करना है, बस 8 के ऊपर अगर कोई सी भी वैल्यूज है अवेलेबल क्यू के अंदर तो उनको निकालते जाना है, कंटिन्यूसली निकालते जाएंगे, राइट। बट करेंटली इट इज सेटिस्फाइबल, it is within range, so it is actually less than this sorry 8 is actually greater than this 5, right. So this whatever the top element that is available, it is actually in a range and already this data is in sorted order, right. So हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि लाइक क्यू के अंदर कोई और एलिमेंट्स है क्या जिसको हम निकाल सकते हैं एंड ऑल, राइट, बिकॉज डेटा इज ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर। सो हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये विद इन रेंज है, तो एट द एंड क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल हम मेंटेन करते जाएंगे। ओके, एक आंसर वेरिएबल मेंटेन करते जाएंगे। अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है क्यू में उतने एलिमेंट्स को हम 4 के साथ पेयर कर सकते हैं, राइट। बिकॉज जितने भी बड़े एलिमेंट्स थे, अगर यहाँ पे कुछ बड़े एलिमेंट्स रहते लाइक 9 10 रहता तो उसको हमने पुल आउट करके निकाल दिया पहले से। तो अब जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है इसके अंदर क्यू के अंदर उसके साथ 4 को हम इजिली पेयर कर सकते हैं, राइट। वही तो गोल है ना, लाइक 4 क्रॉस 8 तक जितने भी वैल्यूज है, 4 क्रॉस 8 तक जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है उसके साथ 4 को हम इजीली पेयर कर सकते हैं। तो आसानी से जितने भी एलिमेंट्स क्यू के अंदर है वो हम आंसर्स में ऐड करते जाएंगे।
तो आंसर प्लस इक्वल्स टू क्यू के अंदर जितने एलिमेंट्स है, आंसर प्लस इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज, क्यू डॉट साइज, सिंपल लॉजिक है। अब जैसे क्यू डॉट साइज कर लिया, अब हम क्या करेंगे, 4 को क्यू के अंदर पुश कर देंगे, 4 को क्या करेंगे, क्यू के अंदर पुश कर देंगे। लॉजिक सिंपल है। तो अब क्या कर दिया हमने, 4 को क्यू के अंदर पुश कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, हम ये काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आई पॉइंटर बेसिकली पॉइंटिंग एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन 3 पे। अब सेम लॉजिक अप्लाई करना है, हम एक व्हाइल लूप लगाएंगे, चेक कर लेंगे कि जो टॉप एलिमेंट है क्या 3 क्रॉस 2 जो 6 है इससे बड़ा है, अगर बड़ा है तो उसको निकाल दो, अगर बड़ा है तो उसको निकाल दो, जितने भी बड़े वैल्यूज है उनको सबको निकाल दो। बट करंटली स्टिल 6 जो है ये एक्चुअली ग्रेटर देन दिस 5, राइट, वो है। तो ये जो भी एलिमेंट्स है इसके साथ हम पेयर इजीली कर सकते हैं, 3 क्रॉस 4 और 3 क्रॉस 5 ये सेटिस्फाइबल है, राइट। तो अगेन सेम चीज, जैसी जो भी एलिमेंट्स अगर बड़े थे उनको निकाल दिया, जितने भी बचे कुछ एलिमेंट्स है उसको हम आंसर्स में ऐड कर दिया। सेम लॉजिक था, सिंपल था। अब जैसे ही काम खत्म हो गया, 3 को हमने क्यू के अंदर पुश कर दिया, मतलब क्यू के अंदर डाल दिया, राइट। अब नेक्स्ट हमारा आई पॉइंटर इज बेसिकली पॉइंटिंग एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। अब 2 के लिए सेम है, 2 क्रॉस 2 इज बेसिकली इक्वल टू 4। तो 4 के ऊपर जितने भी बड़े वैल्यूज है उनको निकालना है, तो बेसिकली 5 इज एक्चुअली ग्रेटर देन दिस 4, सो इसको निकाल दो। अब क्यू के अंदर 5 तो जो था उसको हमने निकाल दिया, राइट, बिकॉज उसके साथ पेयरिंग बन ही नहीं सकती। 2 एंड 5 का तुम देख के निकालने की कोशिश करो, तो 2 माइनस 5 इज बेसिकली 3, राइट। 2 माइनस 5 इज बेसिकली इक्वल टू 3 विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन 2, बिकॉज इन दोनों के बीच का मिनिमम 2 ही है, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, वो कब तक सेटिस्फाई होगी, 2 क्रॉस 2 बेसिकली 4, अगर 4 मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों के बीच में तब तक ही सेटिस्फाई हो सकती है। तो इन दोनों के साथ पेयरिंग बन सकती है आसानी से, 4 एंड 3 के साथ पेयरिंग बन सकती है आसानी से, ओके। तो अब 4 इज बेसिकली इक्वल टू, जो भी हम चेक कर रहे थे, 2 क्रॉस 2 इज बेसिकली इक्वल टू 4, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू है, तो उस केस में हमने ये व्हाइल लूप रोक दिया वहीं पे, ओके। अब जैसे ही काम खत्म हो गया, जितने भी क्यू के अंदर एलिमेंट्स है उसमें आंसर्स में ऐड कर दिया, राइट। यहाँ पे भी 2 पेयर्स बन रही है। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज बेसिकली इक्वल टू 0, बिकॉज आई इज बेसिकली पॉइंटिंग राइट ओवर हियर, एंड 2 को भी हमने क्यू के अंदर पुश कर लिया, ओके। बिकॉज आगे जाते हुए डेफिनेटली जो यहाँ पे अगर 1 रहता, राइट, तो 1 बेसिकली इजीली 2 के साथ पेयरिंग बन सकती है 1 की, राइट। तो उसी के लिए हमें क्यूज में एलिमेंट्स पुश करते जाना पड़ेगा, ओके। आई होप यू गेट दिस आइडिया, लाइक व्हाई वी आर पुशिंग इट ऑल दिस एलिमेंट्स एंड ऑल। ऑफ कोर्स लाइक जितने भी एलिमेंट्स है उसके साथ पेयरिंग बनाने की कोशिश करनी है ना हमें अल्टीमेटली, राइट। अब नेक्स्ट इज 0। अब 0 को देखेंगे, 0 क्रॉस 2 इज बेसिकली 0, तो 4 इज एक्चुअली ग्रेटर देन दिस 0, तो इसको निकाल दो। 3 इज एक्चुअली ग्रेटर, इसको निकाल दो। 2 इज एक्चुअली ग्रेटर, इसको भी निकाल दो। अब क्यू के अंदर कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो क्यू डॉट साइज इज बेसिकली इक्वल टू 0, तो आंसर में 0 है अल्टीमेटली ऐड होगा। तो इस तरीके से कुछ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोड को एक बार देख लेते हैं, चलिए। तो देखो, हमने फर्स्ट क्या कर लिया, जितनी भी लेंथ है उस एन में स्टोर कर लिया यहाँ पे, एंड जो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एंड एज इट इज एरे के अंदर फिल कर लिया, नम्स ऑफ आई के अंदर, ओके। अब एरेज को सॉर्ट कर लो बेसिकली, बिकॉज व्हाट एवर द ऑपरेशन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड, फॉर दैट वी रिक्वायर टू सॉर्ट दिस डेटा, ओके। अब जैसे ही सॉर्ट कर लिया, एक आंसर वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लो, एंड क्यू, जैसे हमने बोला था कि क्यू हमें यूज़ करना पड़ेगा इसमें, तो क्यू का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, एंड पीछे से स्टार्ट कर देंगे। तो जो करंट एलिमेंट है नम्स ऑफ आई उसको करंट में स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है, मतलब जहाँ तक हम पिक कर सकते हैं, जो पेयरिंग हम बना रहे हैं, राइट, वो पेयरिंग हम कहाँ तक कर सकते हैं, करंट क्रॉस 2 तक, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास एरे के अंदर रहेंगे वहाँ तक हम जा सकते हैं, राइट। तो बिफोर गेटिंग द क्यू डॉट साइज हमें क्या करना है, एक वॉइल लूप चलाना है, एंड जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हम ये लूप चलाते जाएंगे एंड देखेंगे कि क्या क्यू का पिक जो एलिमेंट है, क्यू के टॉप पे जो एलिमेंट है करंट क्रॉस 2, या मतलब यहाँ पे नेक्स्ट भी लिख सकते थे, ओके। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया, बट यहाँ पे यूज़ नहीं किया था, बट कोई बात नहीं है। तो क्यू का जो पिक एलिमेंट है क्या वो नेक्स्ट के बराबर है, मतलब ये जो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रही है क्या ये ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट, अगर है तो उसको निकालते जाओ, जितने भी एलिमेंट्स अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे उन सारे एलिमेंट्स को निकाल दो। अब जो भी बचे कुछ एलिमेंट्स है आंसर में हमें डंप करने हैं, एट द एंड जो करंट एलिमेंट है हम क्यू के अंदर पुश कर रहे हैं, राइट। तो सिंपल लॉजिक था, कुछ बड़ा ऐसा मतलब, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है यहाँ पे, जो एलिमेंट्स है नेगेटिव में दिए उसको पॉजिटिव में कंसिडर करना एंड ऑल, बट एक बार समझ आएगा तो आप क्विकली इसको सॉल्व कर लोगे, ओके। सो आई होप यू गेट द आइडिया, अल्टीमेटली आंसर को रिटर्न करना है। मे बी देर कुड बी बेटर सॉल्यूशंस एज वेल, बट जिस तरीके से थॉट प्रोसेस चल रही थी तो आई गेस यही एक कुछ दिमाग में आया था उस समय पे।
अगर कोई बेटर सॉल्यूशंस है तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू पुल दैट आउट एंड आई विल मेक द वीडियो अगेन, ओके। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली एन लॉग एन बनेगी, बिकॉज यहाँ पे तो बस एक ही बार फॉर लूप चल रहा है, तो इसका एन प्लस एन लॉग एन कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी यहाँ पे। स्टोरेज ऑब्वियसली हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा लिंक लिस्ट के अंदर, लेट सपोज इन वर्स्ट केस ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, of course it is not going to be happen like that way, but still n divided by 2 is something what element will be available in the queue, ओके। सो कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज प्रीटी मच इजी, ये तो सिंपली डिजिटरास एल्गोरिदम था, बस नेगेटिव एजेस को हमें ऐड करना था। बट एक केस मुझे समझ नहीं आ रही थी यहाँ पे, ऑल्दो लाइक आई एक्सप्लेन यू दैट पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। लास्ट क्वेश्चन भी आसान था, बट टाइम कुछ बचा नहीं, तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, उसको सॉल्व करने के बाद उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ऑब्वियसली अब अगर वीडियो नहीं बना पाया तो कल के दिन इसका वीडियो बना के बता दूंगा, बट सिंपल था, क्लियरली डिजिटरास एल्गोरिदम था, कुछ नहीं था इसमें, डायरेक्ट डिजिटरास एल्गोरिदम अप्लाई करके इसको सॉल्व करना था, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय।